Hello young physics learner, welcome back to my class, and today I am going to explain you circular motion. This one is the last topic of motion in a plane. So till this time I have taken many topics under motion in a plane. First one is the vector. So I have described in very elaborated form what is vector and the different properties of vector, right, like resolution of vector, dot product, cross product, multiplication of vectors, addition, subtraction of vectors, the theorem related to it. So I have discussed about the vector earlier. Afterward I described you projectile motion, I described you relative velocity, relative motion, and that relative motion I described simultaneously for motion in a straight line and motion in a plane. So this one is the last topic. If you will go through with the NCERT book, you will see the circular motion is the last topic of motion in a plane. But remember this topic is not the one go topic for class 11th. This uniform circular motion, basically you will learn about uniform circular motion. Uniform circular motion will also be entered in dynamics of physics. As I told you, mechanics is divided into two parts, kinematics and dynamics. So dynamics means what? Next chapter is motion, Newton's law of motion. So Newton's law of motion में force जब introduce हो जाएगा, then the part of mechanics become dynamics. Are you getting my point? Dynamics तब बनती है जब force include हो जाता है motion के साथ में. तो motion, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या किया गया है कि जो 3 लॉज हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं न्यूटन्स के, उन्हीं 3 लॉज को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बेसिस पर कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स यहाँ +1 में आपके लिए इंट्रोड्यूस की जाएंगी. तो दैट व्हेन एवर फोर्स इज़ इंक्लूडेड along with the motion, then the branch of mechanics is called dynamics. So dynamics में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आना है. उसके डिफरेंट केसेस आप सॉल्व करोगे. वो 3 केसेस उसके दिए हुए हैं ऑलरेडी, 3 डिफरेंट पोजीशन पे. यू विल सॉल्व दैट एज वेल एज दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल कम इन द रिजिड बॉडी मोशन, the next chapter of the gravitation chapter. So that is why I am saying that this topic is not one go topic. It will be included in the next chapter too. So that is why the base must be clear to you. So focus over whatever I am saying, I am explaining here, so that you may apply this base concept to the next sessions. Clear? So let's start with the circular motion. Till this time we have described the projectile motion, which is the parabolic motion. Those who are from the mathematics stream, they know that if we are talking about motion in a plane, plane means what? 2-dimensional. We are talking about the plane x and y axis. If we are taking the 2 dimensions x and y, or x and z, or y and z, if we are taking the 2 dimensions, 2 axes, then this is called the 2-dimensional motion or motion in a plane. I have already explained it. So here we have described about the parabolic motion. जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उनको पता है कि हमें टाइप ऑफ मोशन कितने पता है मोशन इन अ प्लेन में. फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोलिक, जो प्रोजेक्टाइल में आया था, पैराबोलिक मोशन, सर्कुलर मोशन, नॉर्मल आपका प्लेन मोशन हो सकता है. प्लेन मोशन मीन्स क्या होता है? दैट इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग हियर इन दिस मैनर, ठीक है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन मोशन, बट बिकॉज इट कैन बी डिस्क्राइब इन 2 फॉर्म्स, एक्स और वाई के फॉर्म में इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. वाई इज इक्वल टू वॉट? mx + c. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. तो ये क्योंकि एक्स और वाई दोनों फॉर्म में आ रही है, तो इसलिए ये मोशन इन अ प्लेन होगा. इट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो एक प्लेन में मूव कर रहा है. सो दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू द मोशन इन अ प्लेन मोशन. एंड इलिप्टिकल मोशन, इलिप्टिकल मोशन. तो इलिप्टिकल मोशन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा. ये भी 2 डायमेंशन का ही केस है इलिप्टिकल मोशन. इसमें फोर्स के साथ में ग्रेविटेशन में डिस्क्राइब किया गया और भी बहुत सारे टर्म है. दैट इज़ वाई दिस इज़ द डिफरेंट पार्ट. ओके, तो इनमें से आपने पैराबोलिक मोशन पढ़ लिया है. जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है y² = 4ax, और
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी x और y अगर दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, कोऑर्डिनेट्स टर्म आते हैं, तो ऐसे टाइप की इक्वेशन और उसके रिगार्डिंग मोशन को हम मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। क्लियर? अब सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल किस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होता है सर्कुलर मोशन। ये इक्वेशन है सर्कुलर मोशन की, जिसमें ए क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो क्योंकि इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। दिस प्लेन मोशन मीन्स व्हाट, y is equal to mx plus c. So y and x again both are included, and elliptical motion means what, x square over a square plus y square over b square is equal to 1. This is elliptical motion equation. So again x and y both term. So these kind of motion which can be represented by the kind of equation where x and y both are included, that kind of motion is called 2-dimensional motion. Because we are focusing over the circular motion, x square plus y square is equal to a square, we will get this kind of equation. So that is why this circular motion is the example of motion in a plane. Are you getting my point? Now come to the circular motion and we will apply some base concept जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को, तब हम बता पाएंगे कि व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। ओके, सो सबसे पहले आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दो काइंड के मोशन हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी कहते हैं। ये यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। नहीं, अगर आपको अभी नहीं रिकॉल हो रहा है तो वीडियो देख लेना आप वो मेरा, जिसमें मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ये सारे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म टर्म्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स व्हाट, द सर्कुलर मोशन, the body, when the body is moving in a circular path with the uniform speed. Remember this, speed and velocity both are different thing. Speed and velocity both are different thing. It is a scalar quantity. ये straight line में आपने सारा पढ़ा था, and this one is a vector quantity. So if we are talking about the circular motion, if we are talking about the circular motion and the body is moving in a circular path with uniform speed, not the velocity, because velocity carries the direction. Now how we get the velocity or speed? If we are taking 2 points, this is A point, this one is B point, so velocity can be represented by tangent. This one is velocity at A point, this is V1, velocity at B point, this is V2. These are velocity, so we will put the vector sign here. बट द मॉड ऑफ वेलोसिटी, किस तरीके से हम स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं, मॉड से। सो मॉड ऑफ वेलोसिटी v1 एंड v2 बोथ आर सेम, दैट मीन्स स्पीड एट a पॉइंट दैट शुड बी इक्वल टू स्पीड एट b पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले ये कौन सा डायरेक्शन था, अगर आप डायरेक्शन डायग्राम बनाओगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन था v1 वेलोसिटी का, और अब ये डायरेक्शन हो गया है नॉर्थ वेस्ट, इस डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, दैट मीन्स डायरेक्शन इज चेंज्ड। इफ डायरेक्शन इज चेंज, दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंज नाउ, regardless of the fact the magnitude of the velocity is same. What is the magnitude of velocity? Which is equal to speed. Speed is a scalar quantity having no direction, so that means speed remains same. So we can define the uniform circular motion. Uniform word means related to constant. So constant circular motion is regarding with the circular motion with uniform speed. रिमेंबर दिस, अगर आप कॉपी में एग्जाम में ये लिख करके आते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी वर्ड ही रॉन्ग हो जाता है। वेलोसिटी मीन्स व्हाट, विद डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज वेरिएबल हियर, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू मेंशन हियर, यू हैव टू फोकस द वर्ड स्पीड. सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with uniform speed, then the motion is said to be uniform circular motion. This is given in your syllabus. Now what is variable circular motion, which is not in your syllabus?
when the body is moving in a circular path with variable speed. वेरिएबल मोशन में क्या होगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन है. सर्कुलर मोशन को मैं यहाँ पे सी एम से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ. होता नहीं है रिप्रेजेंट, ये सी एम से नहीं करते. सी एम में सेंटर ऑफ मास होता है, जो आप रिजिड बॉडी में पढ़ोगे. सी एम को अभी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ सर्कुलर मोशन. आई एम calling the name to uniform circular motion. If it is uniform circular motion, then V1 should be equal to V2, the mod of these two. If it is variable circular motion, then mod of V1 is not equal to mod of V2. तो उस समय मॉड भी इक्वल नहीं होंगे, यानी स्पीड भी इक्वल नहीं है. ए पॉइंट पे स्पीड लेट इट बी 20, देन बी पॉइंट पे स्पीड इट मे बी 30 और इट मे बी सम लेस देन 20. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, देयर इज अ variable speed, then it is known as variable circular motion or non-uniform circular motion. If it is a constant speed, then it is known as uniform circular motion. So speed word is important, and what is uniform and what is non-uniform or variable, you must know the difference between the two. Is it clear to everyone? Any confusion? No? Now we will introduce some terms which will be very beneficial in next 2 chapters. As I told earlier, that first one, Newton's law of motion, you will get this term again. So that is why whenever I am going to introduce this term here, that will be beneficial for your next chapter. Motion, laws of motion में use होना है. And furthermore, these term will be useful in motion of rigid body. Rigid body motion जो आपका gravitation के बाद का चैप्टर है, वहाँ पर भी ये terms यूज़ होंगे. तो इन terms को आप अच्छे से समझ लो, जो कि आपके linear से ही linked हैं. So now let us discuss the terminology related to uniform circular motion. So first term is displacement, which is called angular displacement. Now see, when we have started motion in a straight line chapter, वहाँ पर हमारी स्टार्टिंग हुई थी पाथ लेंथ से, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से. क्लियर? बेसिक टर्म था डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होती है. ठीक है. अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से स्टार्टिंग हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डेल्टा मीन्स होता है डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यू. दैट मीन्स डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा 1. क्लियर? अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन में कंडीशन देखो. दिस वन इज ए पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल. यहाँ पर ये सेंटर ऑफ सर्किल है. क्लियर? ये ए पॉइंट है. एट दिस time, if we are taking a horizontal line, so horizontal line is known as the reference line. So whenever body start moving from the initial point A, let at some other time it reaches to point B, then we can take the radius from C point to B point, and we can draw the velocity here at A point in this manner. Let it be V1, and velocity at B point here by the tangent V2. Velocity is represented by the tangent line. The length of the tangent line corresponding to magnitude of velocity, and the direction of tangent line indicates the direction of velocity. Clear? Now this, because it is a reference line, horizontal line, so it is making an angle theta. The initial angle is 0, and when the body reaches up to the B point, the angle becomes theta. So here the delta theta should be equal to theta from the initial value to the final. This theta is also called augment. Mathematically it is called augment. जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं ऑगमेंट. तो यहाँ पर थीटा जो हो रहा है वो एक एंगल फॉर्म कर रहा है, और ए से बी तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा. सो डेल्टा थीटा वैल्यू हियर इट इज थीटा. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय the difference of the two augment from one point to other point. Clear? Now because AB is an arc, ये जो ये लाइन आ रही है, this is an arc.
AB is what? It is arc, and because angle is equal to arc over radius, so we can write it as theta. Angle is equal to arc over radius. So if the radius of this circular motion, this is r, यहाँ r ले रहे हैं, वैसे r एक वेरिएबल डिस्टेंस होती है, कई बुक में इसे a से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप इन दोनों में से कोई भी टर्म ले सकते हो, ठीक है. r मीन्स रेडियस ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्क की वैल्यू बिकॉज इट इज़ AB डिवाइडेड बाई द रेडियस टर्म, हियर इट इज़ r. सो एंगल थीटा is equal to arc over radius. This one is the formula for angular displacement. Any doubt? Is it clear? So angular displacement delta theta or theta, it can be represented by AB over A. अब delta theta कैसे मिल सकता है? Let the another point here, it is P. Initially, the initial value, initial position of the body is B, which is at theta angle from the reference line. And the final position is P, which is at theta dash angle from the reference line. So then the angular displacement will be represented by theta dash minus of theta. So then the angular displacement here in this case, it will come as delta theta is equal to theta dash minus of theta. So in this manner we get the angular displacement of the body. So this one is equivalent to the linear case. If the body is moving in a linear motion, then we can equate this angular displacement with the linear displacement. That means there may be some relation between the angular displacement and linear displacement. So we will find that relation. The relation between theta and linear displacement, that is S. हमने स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट S रखा हुआ है, ठीक है. तो इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा? नथिंग. यहाँ पर AB जो आर्क था वो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. यू कैन से दिस, A से B तक जाने में जितना बॉडी लीनियर मूव की है उसको हम आर्क कहेंगे, बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. तो वॉट एवर बी द लीनियर मोशन, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द आर्क ऑफ द सर्किल. सो दिस AB शुड बी इक्वल टू S, which is the linear displacement. Clear? If AB is equal to S, then we can write theta as S divided by R. So that is the relation between linear displacement and angular displacement. Theta is equal to S divided by R. अब यहाँ पर आपको एक में ये relation आ गया है. This is the relation. इससे जब मैं नेक्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ उससे पहले ये थीटा की वैल्यूज़ देख लो. अभी तक आप लोग जब थीटा यूज़ करते थे तो आप 90 और 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, 270 इस तरीके से मेंशन करते थे. अब इन टर्म्स को देख लो क्योंकि आगे अभी यही टर्म्स यूज़ होने हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल में भी एज वेल एज थ्योरी में भी. अब आप लोग इसी फॉर्म में यूज़ करोगे ताकि आपके आगे के लिए, जैसे वेव एंड ऑसिलेशन में अभी यहाँ पर पाई टर्म्स में यूज़ हो जाएगा. सो वी विल गेट इट एज पाई इन द फॉर्म ऑफ पाई. सो दिस वन इज़ द 0 डिग्री एंगल, दिस वन इज़ पाई बाई 2. पाई बाई 2 इज इक्वलेंट टू 90. ओके, दिस इज़ 180 डिग्री, 180, और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पाई. दिस इज़ 3 पाई बाई 2. रिमेंबर दिस इज़ 3 पाई बाई 2 विच इज़ इक्वलेंट टू 270 डिग्री. दिस वन इज़ 180 डिग्री. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. रेडियन यूनिट आप लोगों को जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट, यू हैव गॉन थ्रू द पाई टर्म्स, रेडियन टर्म्स, जो आपके एंगल आते हैं, सॉलिड एंगल्स एंड प्लेन एंगल्स. कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे उसमें. आपने पैरेलैक्स पढ़ा था. पैरेलैक्स में इस तरीके के न्यूमेरिकल थे जिसमें आपका पाई रेडियन के फॉर्म में क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे थे. तो वो पाई के फॉर्म में अब आपको एंगल को निकालना आना चाहिए, ठीक है. सो दिस वन इज़ 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज़ अगेन 2 पाई. यहाँ तक 2 पाई हो गया. पाई, दिस वन इज़ 2 पाई. नाउ 2 पाई में आपने पाई बाई 2 ऐड कर देना, यू विल गेट दिस टर्म. सो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, सो यू विल गेट इट एज 5 पाई बाई 2. सो हियर इट विल कम एज 5 पाई बाई 2. इधर यहाँ पे क्या आया था 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आ गया 5 पाई बाई 2. अब इसके बाद इसके आगे जाओगे तो ये आ जाएगा 3 पाई. यहाँ पे पाई मिला था, यहाँ 3 पाई हो गया. देन दिस वन इज़, बिकॉज इट इज़ 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट विल कम एज 7 पाई बाई 2.
Getting my point? Then you will come here, you have got 2 pi, here you will get 4 pi. You can see here in the left side of the 180 degree you are getting pi, 3 pi, then next will come as 5 pi. Here you are getting 0, 2 pi, 4 pi and so on. Here you are getting pi by 2, 5 pi by 2, then it will come as 9 pi by 2 because there is a difference of 4. यहाँ पे 4 का डिफरेंस है न्यूमरेटर में, पाई है यहाँ पे 5 पाई आ गया, तो 5 पाई और पाई में कितने का डिफरेंस है, 4 का. ठीक है. सो नेक्स्ट विल कम एज 9 पाई बाई 2 और उससे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज़ 11 पाई बाई 2. यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस चल रहा है. कि जब आप +2 में जाओगे तो +2 में आपका जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर में परफेक्टली ऐसे बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, तो वो उसमें उस पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते आप लोग यूज़ टू हो चुके होंगे. तो अभी से ही इस थीटा को प्रैक्टिस कर लो कि थीटा को हम डिग्री के पर ना रख करके हम क्या रखेंगे, पाई के फॉर्म में यानी रेडियन के फॉर्म में, क्योंकि फ़िज़िक्स में आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पर डिग्री नहीं रेडियन यूज़ हो रहा होगा, तो बेटर रहेगा अभी से प्रैक्टिस होगी. सो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा हियर इन दिस केस, देन यू विल गेट इट एज थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर. एस इज़ आर्क, तो आर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल, दैट इज़ 2 पाई आर. इसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं. डिवाइडेड बाई आर, आर इज़ अ रेडियस, सो यू विल गेट इट एज 2 पाई. यानी पाई थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 2 पाई. यानी एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो सर्कुलर पाथ कहाँ तक का मैक्सिमम मूव करेगा, 2 पाई तक. उसके बाद रिपीटिशन ऑफ द पाथ होगा. ये यहाँ पर 2 पाई के बाद क्या है, रिपीटिशन हो रहा है 4 पाई एंड सो ऑन. और यहाँ पर आगे जब आपके साइन और कॉस में वैल्यूज़ आएंगी, जब आपने वेक्टर का रिजोल्यूशन किया था तो यहाँ पर भी रिजोल्यूशन फॉर्म में रखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर को. ये जो रेडियस के फॉर्म में यहाँ पर पोजीशन वेक्टर भी आ जाएगा आगे के क्वेश्चन में, अभी नहीं आया है, आगे आएगा. तो पोजीशन वेक्टर के रिजोल्यूशन को आप साइन और कॉस के फॉर्म में रख सकते हो. क्लियर. अभी आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होगी यहाँ पर, 2 पाई इन अ प्लेन. अगर सॉलिड एंगल ले रहे होते, अगर हम 3 डायमेंशन स्पेस में ले रहे होते तो यहाँ पर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती 4 पाई. ठीक है. ये भी मैंने आपको बताया हुआ था फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट एंड मेजरमेंट में. सो आई होप कि ये जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और इसके लिए आपको ये एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, ये फॉर्मूला रिकॉल करना है. सो नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर वेलोसिटी. सेकेंड टर्म angular velocity. Angular velocity is represented by omega. Now what is angular velocity? Like the case of linear velocity, what is linear velocity उसको समझना ज़रूरी है. linear velocity क्या होती है, v से रिप्रेजेंट होती है and this is equal to displacement over time. यही रखते हो वैल्यू, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. अब यहाँ पर ये जो डेल्टा होता है इसको डी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये भी आपको अभी यहाँ पर मैं बताऊँगी आगे. लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए डेफिनेशन वाइज, ये बेसिक टर्म है. एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ओमेगा कहते हैं, और ओमेगा that should be equal to angular displacement divided by time. So we can say it as the rate of change of angular displacement is called angular velocity. What I am saying, the rate of change of angular displacement is called angular velocity. So this is angular velocity, omega is equal to d theta by dt. ये फॉर्मूला आ गया. अब हम इसे ग्राफ के बेसिस पर, ये जो फिगर है इसके बेसिस पर देखते हैं. आपका ये ए पॉइंट है, center point, and this one is B point. Clear? This is R, this one is R, and this is the velocity V1, this is the velocity V2. Clear? Vector sign. ये हो जाएगा. अब यहाँ पर देखो तो ये रेडियस है and this one is the angular displacement, इसको हम यहाँ पर अभी डेल्टा थीटा ले रहे हैं. Okay? So we can write angular displacement delta theta should be equal to, if the AB value is
ए बी इज इक्वल टू डेल्टा एस, जो मैंने यहाँ एस रखा था उसको मैं डेल्टा एस रख रही हूँ. सो एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस. रेडियस इज सेम एट ए पॉइंट एट बी पॉइंट. सर्कुलर मोशन है तो ऑब्वियसली हर एक पॉइंट पे ये रेडियस तो सेम होगी. सो दिस इज दिस वन. अब इसको आप क्या करोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे. सो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू 1/r. आर रेडियस है क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है, देन रेडियस इज कांस्टेंट. तो इसको हम डेरिवेटिव में ले रखेंगे. इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव. जब हम टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव. सो वी हैव टेकन द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इन द राइट साइड द डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. सो हियर वी हैव टेकन, यू कैन राइट हियर दैट टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव on both side. Okay, you have taken time derivative on both sides. So delta theta over delta t is equal to this one. Now what is delta theta over delta t? Because it is d by dt. तो अब हमें करना क्या होता है वो चीज़ देख लो. यहाँ हम रखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो. क्यों किया ऐसा ये बता रहे हैं. लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो का मतलब है कि ए और बी पॉइंट एक दूसरे के नियर बाई अप्रोच कर रहे हैं. मतलब ये है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम होती जा रही है. डेल्टा इज़ द बिग डिफरेंस, इसको हम कहते हैं बिग डिफरेंस. डी इज़ द स्मॉल डिफरेंस. क्लियर. डी जब यूज़ हो जाता है, डी मीन्स ऑल्सो डिफरेंस एंड डेल्टा इज़ ऑल्सो डिफरेंस, बट डेल्टा इज़ द बिग डिफरेंस. यानी अगर गैप ज़्यादा है ए और बी के बीच में तो इसको हम कहते हैं बिगर डिफरेंस. तो ये जो बिग डिफरेंस होगा उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे. इफ़ ए एंड बी आर अप्रोचिंग क्लोजर टू ईच अदर, यानी यहाँ जो बी पॉइंट है ये बहुत दूर नहीं गया है, ये ए पॉइंट के पास में ही है, तो उस समय हम इसे कहेंगे स्मॉलर डिफरेंस. यानी आप डेल्टा एस हो या डेल्टा थीटा हो, इन दोनों की स्मॉल वैल्यू को पुट कर पाओगे. और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं जब भी हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे वेरी कर रही है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम पे बताया. सो वेलोसिटी एट ए पॉइंट is having some different direction, velocity at b point is having some different direction. So जितना ये b point दूर जाएगा इसका डायरेक्शन उतना चेंज होता जाएगा. यहाँ पे देखो तो सीधे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, जबकि a point पे वर्टिकल थी, तो डायरेक्शन बहुत वेरी कर जाएगा अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी. यही इसका ऑपोजिट सोचते हैं. तो जब ये पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज बाई होंगे तो डायरेक्शन कम चेंज होगा, यानी हमें इंस्टेंटेनियस एक ही पॉइंट पर, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर स्पीड वेलोसिटी मिलेगी, नॉट स्पीड. स्पीड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हम अगर पॉइंट को क्लोज बाई कर देते हैं तो ये वेलोसिटी हमें ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे मिल रही है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वर्ड इज़ रिलेटेड विद द इंस्टेंट. इंस्टेंट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में. तो जब हम ए और बी पॉइंट को क्लोज बाई कर देंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी हमें किसी एक पॉइंट पर ही मिलेगी, तो वो एक्चुअल वेलोसिटी होगी. सिंपलेस्ट केस, जैसे कोई भी आप खड़े हो और आपके सामने से कोई बाइक निकल रही है तो उसकी स्पीड में वेरिएशन होगा. जितना वो दूर जा रही है उसकी स्पीड में वेरिएशन उतना ज़्यादा हो चुका होगा, लेकिन जितने भी नियर बाई है आपसे, आपके नियर बाई होते हुए निकली है, उस समय उसकी स्पीड में वेरिएशन मिनिमम है. तो वो मिनिमम वेरिएशन यानी कांस्टेंट स्पीड को की तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमें यहाँ पर डायरेक्शन ऑलमोस्ट हमें ज़्यादा चेंज नहीं चाहिए. अगर ये भी पॉइंट इसके पास होगा तो डायरेक्शन विल बी ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली द डायरेक्शन एट ए पॉइंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अप्लाई द लिमिट हियर, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो. यानी टाइम इंटरवल ज़ीरो को टेंड कर रहा है, इसका मतलब हम ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पर स्पीड को लेकर के आ रहे हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, दैट इज़ इक्वल टू 1/r लिमिट. क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड में लिमिट लगाई है तो हम राइट साइड में भी लिमिट लगाएंगे, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. क्लियर? अच्छा, अब आप मुझसे एक क्वेरी करोगे कि अगर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ही लेना था तो हम सिर्फ ए पॉइंट पर ही निकाल लेते. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. जब तक कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लीनियर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब तक हम वेलोसिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आप किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे
जब तक कि वो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो रिक्वायर्ड है, ए से आगे बढ़ना है, लेकिन हमें उसको फिर वापस मैथमेटिकली ए पर ही लेकर के आना है। क्लियर? सो दिस वन इज़ द लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. नाउ if we are applying the limit, then delta terms is converted into d terms. Delta means big difference, d means small difference. So we can write, removing the limit, we can write d theta divided by dt is equal to 1 over r ds divided by dt. आपको यहाँ इन दोनों टर्म्स से ये समझ में आ गया होगा कि डेल्टा और डी में डिफरेंस क्या है, सबसे पहली चीज़, और इंस्टेंटेनियस और लॉन्गर डिस्टेंस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है? सो हियर जो डेफिनेशन होती है वो इंस्टेंटेनियस के लिए रखी जाती है। सो वी विल गेट दिस टर्म डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एज ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर आर एंड दिस टर्म इज वी. सो वी विल गेट दिस टर्म v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये टर्म जो है आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, v इज़ द लीनियर वेलोसिटी. ये टर्म आपका आगे तक यूज़ होना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इस टर्म को तो अपने माइंड में रख लो. v इज इक्वल टू आर ओमेगा बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला टर्म है ये. ठीक है? सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. रिलेशन between linear and angular velocity. Clear? No doubt. यहाँ आपको क्या बताया? डेफिनीशन, जो लीनियर वेलोसिटी से ही एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट करके हम डेफिनीशन बनाते हैं. उसके बाद आप निकाल रहे हो रिलेशन, किसमें? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में. तो अभी तक आपने क्या किया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म, वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता है? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टर्म? इट शुड बी एक्सेलरेशन. जब आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था तो इंट्रोडक्टरी क्वांटिटीज़ जो टर्मिनोलॉजी होती है वो इन्हीं से, इसी सीक्वेंस में ही स्टार्ट होती है. सो मोशन के लिए थर्ड टर्म होना चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके? सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. क्लियर? नाउ अल्फा, इफ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अल्फा, देन with the similar manner of linear acceleration, a is represented by dv by dt. ये linear acceleration होता है. Rate of change of velocity is called acceleration. This is linear acceleration. So what should be the definition of angular acceleration? Alpha should be equal to v के equivalent quantity कौन सी आ चुकी है? ओमेगा. सो इट शुड बी डी ओमेगा बाई डी टी. ये टर्म आना चाहिए. यानी ये बेसिक डेफिनेशन हो गई. एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वैसे तो रेट का मीनिंग ही होता है टाइम. अगर आप रेट वर्ड यूज़ कर रहे हो तो मीन्स टाइम है. अगर आप ग्रेडियंट वर्ड यूज़ कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है. सो हियर वी आर यूजिंग द रेट वर्ड, सो दैट इज़ वाई द एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. Angular velocity is called angular acceleration. Clear? अब हम इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करेंगे और रिलेशन निकालने वाले हैं. किसके बीच में? लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में. सो वी कैन टेक द टर्म हियर. दिस वन इज ए पॉइंट, सेंटर पॉइंट. दिस इज बी पॉइंट. ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है, और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज़ डी थीटा. इसको अभी डेल्टा थीटा ले लेते, लिमिट अप्लाई कर देंगे. हियर द ए बी वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस विच इज़ आर्क. आर्क क्या होता है? विच इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? आर्क को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डेल्टा थीटा जो ये आता है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑगमेंट. मैथमेटिकली इट इज़ कॉल्ड augment.
So here the velocity, these are the two velocity. This is CAB. We can draw the linear line here from A to B. This one. So we can take the triangle here CAB like this way. ऐसे बना हुआ है, जिस तरीके से बना हुआ है उसी तरीके से बनाएंगे. So this one and this is delta theta. This value is R, this value is R. Okay. Now we will take the magnitude of this two value. One is V1 as such and another is V2. This one. The angle between the two, जितना अब देखो, जितना ये जो लाइन है ये मूव करेगी, CA लाइन मूव करी है CB लाइन तक, तो ऑब्वियसली कि इसके ये परपेंडिकुलर वेक्टर था. यहाँ पे देखो तो ये जो V1 वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर लाइन है रेडियस लाइन. जो V2 वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर लाइन है CB लाइन. सो दैट मीन्स व्हाट, क्योंकि टेंजेंट ऑब्वियसली रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं मैथमेटिकली, तो यहाँ पर क्या होगा कि V2 उतना ही डिस्प्लेस होगा V1 के रिस्पेक्ट में, V1 के डायरेक्शन से, जितना कि यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है. अगर ये B लाइन CB लाइन मर्ज कर जाए CA लाइन में, तो ये जो V2 है ये मर्ज कर जाएगा V1 में. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है? ठीक है. जैसे ही ये CB लाइन CA लाइन में मर्ज करेगी वैसे ही V2 वेक्टर V1 वेक्टर में मर्ज कर जाएगा. तो मीन्स व्हाट कि इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी डेल्टा थीटा होना चाहिए, जितना कि इन दोनों लाइंस के बीच में CA लाइन और CB लाइन के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन V1 एंड V2. क्लियर? वी कैन टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू. If we are taking the line here, this line from V1 to V2, so it will be from V1 to V2, that means V2 minus of V1. ये मैंने कहाँ से निकाला? ये मैंने लॉ ऑफ ट्राइंगल से निकाला है. इसको आप अप्लाई कर सकते हो. लॉ ऑफ ट्राइंगल यहाँ यूज़ हो रहा है. आप कैसे लेते हो लॉ ऑफ ट्राइंगल में? ये एक ही डायरेक्शन से मूव करना शुरू करो. लेट यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो V1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, V12 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है और V2 ऑपोजिट आ रहा है. तो आप ऐसे लिखते हो, V1 एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो प्लस के साथ में होगा, उसके बाद V12 भी प्लस के साथ में हो गया और उसके बाद V2 किसके साथ में हो गया? माइनस के साथ में. एंड दिस इज़ इक्वल टू 0. क्योंकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो नेट वेक्टर कितना होना चाहिए इसका? ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू आ रहा है विच इज़ अ ट्रायंगल लॉ. इट इज़ इक्वल टू 0. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V12? V12 शुड बी इक्वल टू V2. ये इस साइड ले जाओ, V2 माइनस ऑफ V1. समझ में आ रहा है ये कहाँ से आया होगा? समझ में आना चाहिए आप लोगों को. कोई क्वेरी हो पूछ लेना मुझसे. ठीक है. तो ये आपका एक वेक्टर आ गया V12 इज इक्वल टू V2 माइनस V1. अब हमें क्या करना है कि इन दोनों की सिमिलैरिटी प्रूफ करनी, इन दोनों ट्राइंगल की. ओके. सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. एक कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल है, दैट डेल्टा थीटा बोथ आर सेम. दूसरी कंडीशन ये आर है, ये भी आर है. यहाँ पर आप देखो तो ये V2 है और V2 मैग्नीट्यूड ऑफ V2 दैट शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V1. क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज इट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बेसिक डेफिनेशन याद करो जो पहले बताई थी, दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन where the magnitude of velocity is same but the direction is varying. यानी the body is having the uniform circular motion if it is moving in a circular path with uniform speed. Speed means what? The magnitude of velocity. Clear? So here the magnitude are same. So these two lines are similar, same, and these two lines are same. So that means what कि इस triangle में ये तो proof हो गया कि एक तो angle और दूसरा दो sides equal आ रही हैं. So that is why these two triangles are सिमिलर ट्रायंगल. और जब सिमिलैरिटी प्रूफ हो जाती है तो हम किसी भी दो साइड्स के रेशियो को ले सकते हैं. सो बिकॉज ए बी क्या था आपका? डेल्टा एस था. हमने सबसे पहले कंडीशन ले ली यहाँ पर. अब मैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग्स में डेरिवेशन के टर्म्स रखने जा रही हूँ. मैंने इस ट्रायंगल में लिया डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एनी लाइन. यहाँ पे ले लिया V12 डिवाइडेड बाई एनी लाइन.
मॉड ऑफ v1, मॉड, रिमेंबर दिस, ये मैंने लिखा हुआ है मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ एक नॉर्मल वेलोसिटी ले ली v, ठीक है, ये v वेलोसिटी। अगर हम इसे मॉड के बाहर निकालना चाहें तो इसको विदाउट एरो साइन यानी विदाउट वेक्टर साइन यहाँ यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ओनली द मैग्नीट्यूड, सो वी हैव टेकन दिस एज v, उसको अभी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। क्लियर? सो डेल्टा s divided by r is equal to, what is v12? v12 is v2 minus of v1 divided by v. Clear? Now v2 minus v1 we can write it as delta v divided by v. Here it is delta s divided by r. Getting my point? What I am doing here? Now you can do one thing, that v over r you can take at one side, v over r into delta s, that is equal to delta v. Now taking time derivative on both sides, time derivative on both side, so you will take it as v over r, क्योंकि ये तो वेरिएबल टर्म नहीं है तो ये एस सच रहेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा s ओवर डेल्टा t is equal to delta v divided by delta t. So here then you will take the limit on both side। क्यों लिमिट लेनी, because we have to convert this delta into d, smaller difference, ताकि हम a रख पाएँ। So यहाँ हम लेंगे लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, v ओवर r टर्म आपका बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल टर्म नहीं है। लिमिट किस पर अप्लाई होती है, जहाँ पे डेल्टा टर्म्स होते हैं। सो विल अप्लाई हियर एज डेल्टा s ओवर डेल्टा t, इस पर लिमिट अप्लाई हो रही है, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। नाउ व्हाट शुड बी द रिजल्ट हियर, you will get it as v over r delta s divided by delta t after applying the limit is converted into ds by dt। लिमिट हट जाएगी अब और यहाँ पर आ जाएगा dv by dt। what is dv by dt? rate of change of velocity is equal to acceleration, linear acceleration, and this one is linear velocity, ds by dt। ये ds क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी आ रही होगी। एक v ओवर r ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू a। अब ये एक रिलेशन आ गया a और v में, बिकॉज हम v और ओमेगा में ऑलरेडी रिलेशन निकाल चुके हैं एज v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, सो वी कैन अप्लाई हियर। सो विल गेट इट एज v के प्लेस पे आपने रख दिया r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यू विल गेट इट एज आर ओमेगा स्क्वायर। सो द फॉर्मूला फॉर a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये है लीनियर एक्सेलरेशन और ये क्या है आपका, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन निकल कर क्या आ रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। एंगुलर एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर आप एक टर्म और देख लो कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो था अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है एंड बिकॉज यू आर अप्लाइंग अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा, यू कैन राइट इट एज d ओमेगा के प्लेस पे v ओवर r डिवाइडेड बाई dt, दैट मीन्स यू विल गेट इट एज dv डिवाइडेड बाई dt, सो 1 ओवर r इट इज a alpha, so a is equal to r alpha. So that is the relation between linear acceleration and angular acceleration. This is relation between linear and angular acceleration. ये सारे टर्म्स आपके आगे यूज़ होने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे यूज़ होता है. तो अब इन सारे टर्म्स को आपने
कंपाइल करना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू मे बी यूज टू ऑफ दीज टर्म्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ओमेगा से लिंक्ड मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो ओमेगा का आपका बेसिक फार्मूला आया उसको देख लो, क्योंकि वो टर्म भी बहुत यूज़ होने वाला है आगे। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी होता है। जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन को हम कहते हैं टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T एंड दिस इज टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट हुआ तो टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब एक रोटेशन कंप्लीट होने में एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पर सर्किल बन रहा है, ये मैंने अभी आपको पाई एंगल बताया। यहाँ पर देखो एक रोटेशन कैसे कंप्लीट होगा, ये 0 है, यहाँ पर आकर के ये पाई हो गया, इधर आकर के ये 2 पाई हो गया, 2 पाई तक एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो अगर ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रखना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर वन रोटेशन कितनी हो जाएगी? 2 पाई। और ये जो t है उस समय टाइम पीरियड कितना हो चुका है? दैट इज़ इक्वल टू दिस टाइम पीरियड, दैट मीन्स टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, सो डिवाइडेड बाई t। सो यू आर गेटिंग द फॉर्मूला फॉर ओमेगा एज 2 पाई बाई t। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फार्मूला इज़ यूजफुल इन ईच एंड एवरी चैप्टर ऑलमोस्ट। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको अप्लाई करना और इसको नोट डाउन कर लो। इसी फॉर्मूले से लिंक हम फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट होती है, अभी तक आप एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू कहते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड न्यू फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका कुछ आइडिया आपको 9th क्लास में जब आपने साउंड चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने वेव पढ़ा था, उसमें होगा। तो आपने ये फार्मूला यूज़ किया था फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का, वो फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो ओमेगा का एक और रिलेशन निकल के आता है, 1/t को अगर हम न्यू में कर दें, सो न्यू इज़ इक्वल टू दिस वन। So this is angular velocity, and this angular velocity maximum value should be equal to 2 pi nu or 2 pi by t. I hope all these terminology are clear to you, and this is all given in uniform circular motion. And this one is the last topic, as I told, in the motion in a plane. And afterward I will discuss in my next lecture, I will discuss the numerical portion based on first of all projectile motion. Most important, सारे topic important है इसमें। projectile motion important है, then relative motion important है, then this is circular motion important है। ये 3 motion आपके motion in a plane में दिए हुए हैं। इनको अच्छे से एक बार theory review कर लो मेरे previous videos को देख करके, और next lecture में आप अपने आप को mentally इतना prepare कर लो कि you have all the formula in your mind so that you can apply the formula and concept in that numerical. So next lecture will be only for the numerical based on these 3 topics: projectile motion, relative motion, circular motion. Okay, so thank you for today and keep practicing.